Good morning students. This is our fourth lecture in unit number 1. Okay. Now the previous lecture we discussed the case number 2 of linear differential equation. That is if the right hand side of the given LD is sine or cos. Okay. Now in today's lecture we are going to discuss the next case of the particular integral, that is if the right hand side of the given LD is x raised to power m, means if the right hand side is in algebraic form, then how to obtain the particular integral. Okay, so first of all see the case number 3 is if f of x equal to x raised to power m and m will be integer, then particular integral is 1 upon f of d into f of x, but f of x is here x to the power m. Okay, and if the right hand side is x raised to power m, then we have to use the binomial expansion theorem. So for the binomial expansion theorem, first we write down the inverse of f of d, or write down 1 upon f of d as f of d inverse. Both are the same thing. Here just we write down f of d as f of d inverse x raised to power m, keeping as it is. After that we have to expand that f of d inverse by using the binomial expansion theorem. We have to expand f of d inverse by using binomial expansion theorem. So that we take some common from denominator. Now we see this. First we see the binomial theorem. Okay, सबसे पहले हम binomial theorem देखेंगे कौन कौन से. तो all of you know that binomial theorem is 1 plus x inverse 1 minus x inverse. आपने फर्स्ट ईयर में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की एक थ्योरम पढ़ा. ओके, नाउ बाइनोमियल थ्योरम इज 1 plus x inverse is equal to 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to 4 minus x raised to 5 plus x raised to 6 and so on. मीन्स यहाँ पे क्या है, साइन कैसे अल्टरनेट प्लस माइनस है. देन सेकंड इज 1 minus x inverse. 1 plus x inverse and 1 minus x inverse दोनों थ्योरम की राइट हैंड साइड सेम है. इनका डिफरेंस क्या है, अगर प्लस रहता है तो साइन अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगी, अगर साइन माइनस रहता है तो ऑल द साइंस आर पॉजिटिव. सो इट बिकम 1 plus x square plus x cube plus x raised to power 4 and so on. Okay, after that another form of binomial expansion theorem is 1 plus 2x inverse, that is 1 minus 2x plus 3x square and so on. 1 minus 2x inverse is all signs are positive, प्लस में साइन अल्टरनेट रहेंगे और माइनस में ऑल द साइंस आर पॉजिटिव रहेंगे. ओके, आफ्टर दैट नोट. नाउ दैट नोट इज यूजफुल टू एक्सपांड द एफ ऑफ डी इनवर्स. ओके, जब आपको एफ ऑफ डी इनवर्स को एक्सपांड करना रहता है तब आपको ये नोट यूजफुल रहेगी. सो सी द नोट. If we have to expand f of d inverse, then how to expand it? So first of all, first note is take constant term common from denominator. मतलब आपको सबसे पहले f of d inverse को या तो 1 plus x या तो 1 minus x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, just taking constant term common from denominator and then convert that f of d in terms of 1 plus x or 1 minus x in the form of 1 plus x or 1 minus x. Okay, now अगर सपोज डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी जस्ट टेकिंग मिनिमम पावर ऑफ डी टर्म कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. ओके, okay students, if constant term is present absent in denominator, in that case we take minimum power of d term common from denominator. Okay, now next case number 3 is d raised to n x raised to n equal to n factorial and d raised to n plus 1 into x raised to n become 0. It means that, अब इसका मीनिंग देखो क्या है, अगर डेरिवेटिव का पावर और वेरिएबल का पावर अगर सेम रहता है तो आपका आंसर आएगा दैट पावर फैक्टोरियल. लेकिन अगर डेरिवेटिव का पावर अगर ग्रेटर रहता है एज कंपेयर टू द पावर ऑफ द वेरिएबल, देन इट बिकम्स 0. देखो फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर पहले क्या आएगा 2x
बाद में उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 2। यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स दी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एक्स स्क्वायर का तो कितना आएगा, दैट बिकम 2x। लेकिन अगर हम नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं इसका तो क्या आएगा, हमारे वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ अगेन 2x क्या आएगा 2। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पे पावर सेम रहता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट फैक्टोरियल ऑफ द पावर। ओके, सिमिलरली सेकंड, अगर डेरिवेटिव का पावर अगर वेरिएबल की पावर से ज्यादा रहेगा तो आपका आंसर 0 आएगा। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल सपोज डी स्क्वायर ऑफ एक्स, मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स का क्या आएगा 1। लेकिन अगर आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब अगेन वी डिफरेंशिएट दैट 1, डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आएगा 0, मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा हमारा 0। मतलब डेरिवेटिव का पावर अगर वेरिएबल के पावर से ग्रेटर रहता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसके एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पे सपोज और एफ ऑफ डी इज पी आई इज इक्वल टू, फर्स्ट एग्जांपल 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। और हमें यहाँ पे अगर एफ ऑफ डी को अगर 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पे सपोज 3 है, हाँ, तो सबसे पहले आपको इसका इनवर्स लेना है, मतलब ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में कॉमन निकालेंगे, बाद में सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए इजी रहेगा। देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, सो टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, सो इट बिकम 3 अगर कॉमन है तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 प्लस 3, हाँ, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। कॉमन निकालते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो टर्म आप कॉमन निकालेंगे वो विथ साइन कॉमन निकालना है। ओके, विथ साइन, सो इट बिकम्स 1/3 एज इट इज। नाउ डी स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d अपॉन 3 प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस d square plus 2d upon 3 its inverse into x square। in this way देखो अभी हमारा 1 upon f of d क्या बन गया, 1 f of d inverse, एंड अगेन कौन से फॉर्म में है 1 plus x inverse के फॉर्म में, एंड देन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम एंड एक्सपांड इट। इन दिस वे आपको एक्सपांड करना है, मतलब बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एफ ऑफ डी का इनवर्स लेना है, बाद में उसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको टर्म मिल जाएंगे 1 प्लस एक्स इनवर्स इन द फॉर्म ऑफ 1 प्लस एक्स इनवर्स, एंड देन अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। ओके, देन सेकंड पार्ट इज इफ कांस्टेंट टर्म इज नॉट प्रेजेंट। Number 2, second example, suppose pi is equal to 1 upon f of d, suppose our f of d is d square plus 2d into x square। Suppose f of d is 1 upon d square plus pi is 1 upon d square plus 2d into x square। एंड अगर यहाँ पे आपको बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से कांस्टेंट टर्म कॉमन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म इज नॉट प्रेजेंट, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक मिनिमम पावर ऑफ डी टर्म कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर। यहाँ पे डी का मिनिमम पावर क्या है 1, और उसकी वो टर्म कौन सी है, दैट टर्म इज 2d, so taking 2d कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, so 2d into ब्रैकेट में क्या बच जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2d प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, इट बिकम 1 अपॉन 2d इंटू, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस
d square upon d is d, so d by 2 inverse into x square. In this way we have to take common either constant term or minimum power of d term. तो स्टूडेंट आई होप आपको एफ ऑफ डी इनवर्स कैसे करना है समझ में आया होगा. देन दिस इज द एग्जांपल. So students, see the example. We have to evaluate the equation d square plus 5d plus 6 into y is equal to 4x square. Okay. Now सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे. फर्स्ट वी हैव टू ऑब्टेन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. सो फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट वी राइट डाउन द गिवन एडी. नाउ गिवन एडी इज, व्हाट इज द गिवन एडी? दैट इज d square plus 5d plus 6 into y equal to 4x square. Okay. After that, let's write down the auxiliary equation. Its auxiliary equation is, what is the auxiliary equation? d square plus 5d plus 6 is equal to 0. Then obtain its roots. What are the roots? Roots are -3, -2. Just calculate root find out करना है. Then see the nature of the roots. Now here roots are real and distinct. So apply case number 1 of CF. So complementary function is c1 e to the power -3x plus c2 e to the power -2x. Okay, we get complementary function. Now we have to obtain the particular integral. Okay, so pi equal to, now pi is equal to 1 upon, सबसे पहले हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला 1 upon f of d into f of x. 1 upon f of d into f of x. What is 1 upon f of d? 1 upon f of d is, f of d become d square plus 5d plus 6. d square plus 5d plus 6 into f of x. What is f of x? f of x is 4x square. Okay. Now we know that the solution of pi is totally depends upon the nature of the right hand side of the given differential equation. Okay. अब देखो यहाँ पे right hand side क्या है? Right hand side है 4x to power 2 means x to power m के फॉर्म में है. तो यहाँ पे कौन सी केस अप्लाई होगी? केस नंबर 3. अगर एक्सपोनेंशियल रहता है तो केस नंबर 1, साइन कोसाइन के लिए केस नंबर 2 और अलजेब्रिक के लिए केस नंबर 3. ओके, सो वी हैव टू यूज केस नंबर 3. अब देखो केस नंबर 3 में आपको क्या करना है? केस नंबर 3 में हमें क्या करना है? सिंपली वी हैव टू अप्लाई दी बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम. और बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम क्या है? व्हाट इज बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम? बायनॉमियल एक्सपेंशन थ्योरम इज ओनली 1 plus x इनवर्स या तो 1 minus x इनवर्स. ओके, अब यहाँ पे आपको बायनॉमियल थ्योरम यूज करना है. मतलब आपको क्या यूज करना है? एक तो 1 plus x इनवर्स का फॉर्मूला या तो 1 minus x इनवर्स का फॉर्मूला. ओके, अब 1 plus x और 1 minus x का फॉर्मूला कब यूज होगा? जब हमारी टर्म उस फॉर्म में होगी तभी यूज होगा. बराबर है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमारा जो f of d है उसको 1 plus x या तो 1 minus x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जस्ट टेकिंग कांस्टेंट टर्म कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर हम कॉमन क्या निकालेंगे? मिनिमम पावर ऑफ d टर्म. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जस्ट टेकिंग कांस्टेंट टर्म कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर. सो व्हाट वी गेट हियर? 1 upon 6 into d square plus 5d upon 6 plus 1. ओके, कॉमन टर्म आपको कांस्टेंट टर्म या कोई भी टर्म कॉमन निकालते समय आपको विथ साइन कॉमन निकालना है. देन इट कैन रिटन एज 1 by 6 into 1 upon f of d become now 1 plus d square plus 5d upon 6 inverse into x square. Okay, now apply binomial theorem. 4x square. So here see here 4 and 6 become 2 by 3. So it becomes 2 by 3 into.
अब देखो हमारी टर्म कौन से फॉर्म में है, 1 प्लस एक्स, दैट इज सपोज एक्स 1 प्लस एक्स इनवर्स। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स हियर, डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 6 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस एंड सो इनटू एक्स स्क्वायर। ओके, 4/6 को हमने 2/3 कर लिया। आफ्टर दैट 2/3 इंटू, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 एज इट इज, क्योंकि ब्रैकेट में इनफाइनाइट टर्म्स है। देखिए इनफाइनाइट टर्म हमें देखना है कि इसमें से कौन सी टर्म निगलेक्ट ओमिट होती है। यहाँ पे देखो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, बाद में देखो। अब ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का कौन सा डेरिवेटिव 0 आएगा। देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2x। ओके, एक्स स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, दैट इज 2, एंड एक्स स्क्वायर का थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा 0। And if third derivative is 0, then fourth derivative also 0, fifth derivative also 0. इसका मतलब क्या है, if that power is greater than 2, then all the derivatives are vanishes. क्योंकि अगर डेरिवेटिव का पावर 2 से ऊपर रहता है यहाँ पे, तो डेरिवेटिव क्या आता है आपका 0 आ रहा है। मतलब डेरिवेटिव का पावर अगर ग्रेटर देन 2 है तो वो टर्म क्या हो जाएंगी, यहाँ पे वैनिश हो जाएगी। तो हमें यहाँ इस ब्रैकेट की कौन सी टर्म लेनी है, ओनली पावर ऑफ दीज 2 अप टू 2, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव से लेके बाकी टर्म 0 होती है। तो हमें डी स्क्वायर तक की टर्म आपको लेनी है ब्रैकेट, बाकी टर्म सब ओमिट हो जाएगी क्योंकि वैनिश हो जाएगी। ना 1 है एज इट इज, डी स्क्वायर इसमें आएगा, मतलब डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 6। अब देखो नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारी, थर्ड टर्म इज डी स्क्वायर प्लस 5d होल स्क्वायर अपॉन 36 है, क्योंकि कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो a बाई बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर मीन्स बी टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस ए बी 2 इंटू 5 10 ए बी, मतलब बी स्क्वायर इंटू डी क्यूब प्लस बी स्क्वायर इज 5d होल स्क्वायर इज 25d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। अब देखो इसमें से फर्स्ट टर्म का पावर क्या है 4, तो ए टर्म वैनिश हो जाएगी, सेकंड टर्म भी वैनिश हो जाएगी। सिंपली हमें क्या मिलेगा 25d स्क्वायर, तो सिंपली वी गेट प्लस 25d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। अब देखो थर्ड टर्म में सिंपली हमें एक टर्म मिल गई, उसके बाद की टर्म क्या है, क्यूब वाली है, तो क्यूब में से हमें कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि पावर उसका d का पावर ग्रेटर देन 2 आएगा। तो सिंपली वी गेट 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 5d अपॉन 6 प्लस 25d स्क्वायर बाय 36। ओके, मल्टीप्लाइड बाय क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट बिकम 2/3 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 6 प्लस 25d स्क्वायर बाय 36। तो कितना हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो, दैट नहीं तो फिर आप इसको एडिटिव भी रख सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डी स्क्वायर बाय 6 माइनस 5d बाय 6 प्लस 25d square by 6 into x square. Okay, now solve. After that it becomes pi is equal to 2/3 into 1. यहाँ पे -1/6 और -1 प्लस 1/36 इसकी एडिशन करना है आपको सेकंड और फोर्थ टर्म की, वो बन जाएगा -1/6 प्लस 25/36। सो इट बिकम 36
यहाँ पे 6 प्लस -6 + 25, -6 + 25 become 19. It become plus 19/36 into d square, और third term -5d/6 into x square. Okay, now just multiply. Taking multiplication, 2/3 into 1 into x square become x square plus 19/36 d square x square minus 5d/6 into x square. Now Pi is equal to 2/3 x square plus 19/36 into, now d square x square means second derivative of x square, and what is second derivative of x square? That become 2. It become 2 minus 5/6. Now d into x square become derivative of x square, but power of d is 1, so that is the first derivative. So first derivative of x square become 2x. Okay, now solve. Pi is equal to 2/3 x square plus 19 upon 2/36 become 18 minus 5/3, 2/6 is 1/3 into x, and that is the required Pi. So lastly write down the CF plus Pi both. So complete solution is CS equal to CF plus Pi. लास्ट में आपको CF एंड Pi दोनों की वैल्यू लिखनी है, and that is our complete solution. Okay, in this way we get the solution of the given LD if the right hand side is of algebraic form. Okay student, then we see the another example. So students, see another example. Evaluate the given LD, that is d to the power 4 minus 2d cube plus d square into y equal to x cube. Okay, we have to evaluate it. So first of all, obtain the complementary function. Now given LD, that is d to the power 4 minus 2d cube plus d square into y become x cube. Now its auxiliary equation. What is the auxiliary equation? That is d to the power 4 minus 2d cube plus d square equal to 0. Okay. Now obtain the roots. So see here, d to the power 4 2d cube plus d square. अब आप कैल्शियम में अगर इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो जो आपके पास पुरानी वाली कैल्शियम उसमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन न्यू कैल्शियम में डायरेक्ट आपको रूट्स मिल जाएंगे, क्योंकि न्यू कैल्शियम में पावर 4 तक है, लेकिन पुराने कैल्शियम में सिंपली क्यूबिक तक ही है. सो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं कैल्शियम पे, या तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे तीनों टर्म में डी की टर्म है, सो टेकिंग डी स्क्वायर कॉमन, डी स्क्वायर इज कॉमन, वी गेट डी स्क्वायर minus 2d plus 1 equal to 0. Then it become d square equal to 0 and d square minus 2d plus 1 equal to 0. अब आपको इजी जाएगा. d square equal to 0 means d equal to 0 0. अभी पावर 2 इसके दो रूट्स आएंगे 0 0, और इसको आप कैसे पे सॉल्व कर सकते हैं, तो इट बिकम d is equal to, what are the roots? d equal to 1 1. Okay, this is the nature of the roots. Roots are real and equal. अभी आपके रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स 4 है, यहाँ पे देखो पावर 4 है, इसलिए नंबर ऑफ रूट्स आपके 4 ही आने चाहिए. ओके, देन नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल. सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? देखो फर्स्ट टू रूट्स इक्वल है, तो उसके लिए हम सबसे पहले CF लिखेंगे. फर्स्ट टू रूट के लिए क्या आएगा CF? C1 plus C2x e to the power 0x. देन थर्ड एंड फोर्थ रूट के लिए CF क्या आएगा हमारा? प्लस C3 plus C4x into e to the power 1 into x. Okay, so what is the required CF? CF is equal to C1 plus C2x plus C3 plus C4x into e to the power x. Okay, that is the CF.
Now we have to obtain Pi. Now Pi is equal. Pi is क्या है formula 1 upon f of d into f of x. So Pi is 1 upon f of d. What is f of d? F of d is d to the power 4 minus 2d cube plus d square into f of x is x cube, right hand side. Okay. अब देखो सॉल्यूशन ऑफ पी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ राइट हैंड साइड. अब हमारे राइट हैंड साइड कौन से फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में, तो हमें उसका पी निकालना है. तो पी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उसको एफ ऑफ डी इनवर्स में, एफ ऑफ डी इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 प्लस एक्स या तो 1 माइनस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग कांस्टेंट टर्म कॉमन. लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं है. इफ कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट then taking minimum power of d term common from denominator. यहाँ पे मिनिमम पावर ऑफ d की टर्म कौन सी है, देखो हाईएस्ट पावर ऑफ d 4, उससे लेस 3, उससे लेस 2, मीन्स मिनिमम पावर ऑफ d क्या है, यहाँ पे 2 है. तो हमें कौन सी टर्म कॉमन निकालनी है, d स्क्वायर की टर्म, कंप्लीट टर्म. तो यहाँ पे d स्क्वायर आपको कॉमन निकालना है. d स्क्वायर इंटू d स्क्वायर to the power 4 by d square minus 2d cube by d square plus 1 into x cube. Okay, so it can be written as 1 upon d square into 1 plus d to the power 4 by d square become d square minus 2d, okay, inverse into x cube. That is the 1 plus x inverse form. Okay. Now apply the binomial theorem. So, अब आपको binomial ऐसे apply करना है. What is our Pi? Pi is equal to 1 upon d square keeping as it is now. अब आपको इसको as it is रखना है. So, apply the formula 1 plus x inverse. What is 1 plus x inverse? 1 plus x inverse is 1 minus x plus x square minus x cube and so on. देखो यहाँ x क्या है हमारा, d स्क्वायर माइनस 2d विद x, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. साइड अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे यहाँ पे क्योंकि 1 प्लस है. सो 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू 1 माइनस. अब देखो यहाँ पे d का पावर क्या है, 3 है. तो हमारी कौन सी टर्म मैनेज होगी यहाँ पे, d टू दी पावर 4 से लेके सिंपली आपको कहाँ तक टर्म मिलेगी, ओनली डी क्यूब तक. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डी क्यूब डी पावर लेस देन 3 है, सेकेंड टर्म एज इट इज. अब देखो थर्ड टर्म हम साइड में एक्सपांड करेंगे. डी स्क्वायर माइनस 2d होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, मतलब 2 इंटू 2 4, डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4d स्क्वायर. अब देखो इस टर्म में से हमें कौन सी टर्म मिलेगी, ओनली सेकेंड एंड थर्ड टर्म. ये टर्म मैनेज हो जाएगी क्योंकि पावर ग्रेटर देन 3 है. तो यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 4d क्यूब प्लस 4d स्क्वायर. ओके, सेकेंड टर्म. अब हम थर्ड टर्म को एक्सपांड करेंगे और जो टर्म चाहिए वही लेना है आपको, बाकी टर्म मैनेज हो जाएगी. सो नेक्स्ट इज डी स्क्वायर माइनस 2d होल क्यूब. अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो a माइनस बी क्यूब का, a क्यूब. तो ये टर्म आई है हमारी b टू दी पावर 3 इंटू 2 6. ये फर्स्ट टर्म तो हमारी b टू दी पावर 6 हो जाएगी. देन माइनस 3a स्क्वायर b, फॉर्मूला d
a minus b whole cube, a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. Okay, then 3a square b क्या हो जाएगा 3 into a square means b to the power 4 into b means 2d. Then next plus 3ab square, a is b square into b square 4d square. और नेक्स्ट टर्म आएगी हमारी माइनस 8d क्यूब, यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस 8d क्यूब. ओके, अब देखो इसमें से हमें कौन सी टर्म मिलेगी और कौन सी वैनिश हो जाएगी. हमें कौन सी टर्म चाहिए, ओनली पावर ऑफ डी अप टू 3 तक. तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी फर्स्ट. सेकंड टर्म में डी का पावर क्या आएगा 4 + 1 5, ये भी वैनिश हो जाएगी. यहाँ पे 2 + 2 4, ये भी कैंसिल हो जाएगी. सिंपली क्या मिलेगा हमें 8d क्यूब माइनस और प्लस. एक मिनट, यहाँ पे माइनस साइन आएगा पहले फॉर्मूले में, बाद में माइनस और ए माइनस बिकम प्लस 8d क्यूब. ओके, इंटू एक्स क्यूब. बाकी की टर्म माइनस हो जाएगी आपसे. Okay, after that simplify it. So pi equal to 1 upon d square into 1. देखो माइनस डी स्क्वायर और प्लस 4d स्क्वायर क्या आएगा, माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2d, और यहाँ पे -4 प्लस 8 प्लस 4 d क्यूब into x क्यूब. Now pi become 1 upon d square into 1 into x cube become x cube plus 3 into d square into d square x cube plus 2d x cube plus 4d cube x cube. Okay, so what is pi? 1 upon f of d square into x cube plus 3 into सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या आएगा 3x स्क्वायर, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 6x, 6x into 3, 6 into 3 18x. Then next term plus d. So students यहाँ पे x cube as it is 3 into d square x cube means second derivative of x cube becomes 6x, 6x into 3 18x. Okay, then plus 2 into first derivative of x cube become 3x square, 3x square into 2 that becomes 6x square, and then 4 into देखो d क्यूब x क्यूब है मतलब यहाँ पे मिलेगा हमें 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6 6 into 4 24. Okay, then next है pi is equal to, अब देखो यहाँ पे 1 upon d स्क्वायर है तो 1 upon d मीन्स इंटीग्रल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 1 upon d स्क्वायर को 1 upon d into 1 upon d करेंगे और बाद में 1 by 1 ऑपरेट करेंगे. 1 by d into फर्स्ट ऑपरेट 1 by d into x क्यूब plus 18x plus 6x square plus 24. ओके, 1 by 1 आपको ऑपरेट करना है यहाँ पे 1 upon d as it is. now 1 upon d is the integral, so integral of bracket term x cube का इंटीग्रल x raised to power 4 by 4 plus 18 as it is, x का इंटीग्रल x square by 2, then 6 into x cube by 3 plus 24 into x. Okay, that is the first integral. Now simplify it. Pi equal to 1 by d into x raised to power 4 by 4. Now 18 by 2 become 9
by 3 become 2 plus 24x. Now again apply 1/d. अब बचा हुआ 1/d आपको अप्लाई करना है. मीन इंटीग्रल, फर्स्ट इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 4 का इंटीग्रल आएगा x रेज़ टू पावर 5/5. x रेज़ टू पावर 5 upon 5. 5 into 4 become 20 plus 9 into x cube by 3 plus 2 into x raised to power 4/4 plus 24x square by 2. Okay, so what is pi? Pi is x raised to power 5/20 plus 9/3 is 3x square cube plus x raised to power 4/2. 2/4 is 1/2 plus 12x square, and which is the required pi. Okay, and lastly we have to write down the complete solution, that is CF plus pi both. So lastly complete solution become CF plus particular integral. Okay, आपको दोनों का भी वैल्यू लिखनी है यहाँ पे. In this way we get the solution of the given AD. देखो हमने अब तक के 3 केसेस हो चुके हमारी. फर्स्ट केस एक्सपोनेंशियल, सेकंड इज साइन कॉस, थर्ड इज एक्स रेज़ टू पावर m. ओके, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट केस देखेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.